اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی عجیب خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ پر تلخ اور سخت تبصرہ کیا، یعنی سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ پر تبصرہ کیا اور کہا کہ یہ ایسا ہائی کورٹ ہے، یعنی الہ آباد ہائی کورٹ جس کے بارے میں ہمیں فکر ہوتی ہے۔ ایکچوئل میں آپ دیکھ لیں کچھ نچلی کورٹس ایسی ہے، اور خاص طور سے اتر پردیش میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہاں صرف یک طرفہ کبھی کبھی فیصلے اکثر سامنے آتے ہیں، اور بڑے بڑے فیصلے جو خاص طور سے مسلم سماج کو نقصان پہنچائے ایسے سامنے آتے ہیں۔ آپ دیکھو سنبل کی شاہی جامع مسجد کے سروے سے لے کر اب اور بھی بڑے بڑے فیصلے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اب الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کو لے کر خود سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کورٹ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں فکر ہوتی ہے۔ عباس انصاری کے مقدمے کی سماعت کے دوران جسٹس این کوٹیشور سنگھ اور جسٹس سوریہ کانت نے یہ بیان دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک معاملے کی سماعت کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ کے تعلق سے تلخ اور سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان ہائی کورٹس میں شامل ہے، یعنی الہ آباد ہائی کورٹ بھی، کہ جن کے بارے میں ہمیں فکر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت تروپتی بالاجی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آندھرا پردیش کے تروپتی میں واقع مشہور وینکٹیشور سوامی مندر کے قریب وینکٹ ایکادشی تہوار کے آغاز سے قبل بڑا حادثہ پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ تروپتی میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس بھگدڑ میں 6 لوگوں کی جان چلی گئی اور 40 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ بیمار خاتون کی مدد کے لیے جیسے ہی گیٹ کھولا گیا، ہجوم اچانک آگے بڑھا اور بھگدڑ مچ گئی۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ٹوکن تقسیم کرنے کے لیے بنائے گئے 90 سے زیادہ کاؤنٹروں پر بے قابو ہجوم جمع ہو گئی۔ 10 روزہ تہوار کے لیے 10 سے 12 جنوری تک روزانہ سرو درشن کے لیے 1,20,000 ٹوکن تقسیم کیے جانے تھے۔ جمعرات کی صبح 5 بجے ٹوکن کی تقسیم شروع ہونا تھی، مگر عقیدت مند ایک رات پہلے ہی قطاروں میں جمع ہو گئے، جس سے ہجوم قابو سے باہر ہو گیا اور یہ حادثہ پیش آیا۔ بھگدڑ مچی، 6 لوگوں کی موت ہو گئی، 40 سے زیادہ زخمی ہیں۔ ناظرین، مہاراشٹر کے 3 گاؤں ایسے ہیں جہاں پر عجیب و غریب، حیران کر دینے والی بیماری سامنے آئی ہے۔ 3 دن میں 60 لوگ گنجے ہو گئے۔
अब इंतजामिया अलर्ट हो गई, मुस्तैद हो गई, पूरे गांव का सर्वे हो रहा है और इलाज की सहूलत पैदा की जा रही है। महाराष्ट्र के बुलडाना जिले के कच्छ गांव से या कुछ गांव से अजीब गरीब खबर सामने आई है, यानी 3 गांव है ऐसे, यहां अचानक लोग गंजेपन का शिकार होने लगे हैं। बताया जा रहा है कि लोग बाल गिरने की शिकायत करते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर पूरे तौर पर गंजे हो जाते हैं। कई लोगों के तो महज 1 हफ्ते में सर के सारे बाल उड़ गए। जराये से मिली इत्तला के मुताबिक यहाँ के 3 गांव में गुज़िश्ता 3 दिन में अचानक 60 लोग गंजेपन का शिकार हुए हैं। शहर के शेगांव तहसील के बोंडगांव, कालोड़ और हिंगना गांव में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोगों के बाल झड़ने लगे हैं और इससे सभी गंजे होते जा रहे हैं। यहां तक कि खवातीन भी इसका शिकार होने से नहीं बच रही है। इस मामले को लेकर जिला इंतजामिया मुस्तैद हो गई है और यहां के पानी की जांच की जा रही है। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरेबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायां थोप और सदरी हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरेबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। नाज़रीन, उत्तराखंड, यहाँ पर भी मुस्लिम दुश्मनी करने वाले मुख्यमंत्री भी है और जाहिर बात है कि बीजेपी है। मुस्लिम दुश्मनी के लिए जितने वो पैतरे इस्तेमाल कर सकते हैं भगवा आतंकी टोले को खुश करने के लिए, वो सारे काम कर रहे हैं। अब उत्तराखंड से खबर आ रही है कि उत्तराखंड में UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज की सरगर्मियां तेज हो गई। बताया जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद कभी भी UCC उत्तराखंड में नाफिज हो सकता है। शादी, तलाक और वसीयत वगैरह के लिए रजिस्ट्रेशन फीस की तजवीज भी आ गई है। आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यह टारगेट किया जा रहा है सिर्फ मुसलमानों को, लेकिन कुछ हिंदुओं की भूल है कि यह सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा। आप देखना, अगर UCC आ जाता है तो कई धर्म के लोगों को बड़ा सख्त नुकसान होगा। इसलिए मैं तमाम धर्मों को लोगों से कहूँगा कि मुस्लिम दुश्मनी में इतने अंधे और पागल ना हो जाओ, बल्कि UCC जैसे नापाक कानून का जोरदार विरोध करो, क्योंकि इस मुल्क के प्यारे प्यारे संविधान ने हर मजहब के मानने वाले को अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी दी है और UCC मजहब पर अमल करने की आज़ादियों को छीन लेगा। शादी, ब्याह, तलाक, वसीयत, ये जो कुछ स्पेशली मजहबी उसूल हैं उनमें दखल अंदाजी हो जाएगी और फिर तमाम लोग परेशान होंगे और आगे चल के मुल्क का अमन खत्म होगा, शांति खत्म होगी। नाज़रीन, छत्तीसगढ़ से बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के मंगेली में दर्दनाक हादसा हुआ। प्लांट में चिमनी, वो जो चिमनी होती है, चिमनी गिरने से 30 अफराद मलबे में दब गए हैं। 5 से ज्यादा लोगों की मौत का अंदेशा है। छत्तीसगढ़ में वाक़ई कुसुम प्लांट में यह हादसा पेश आया जहां चिमनी गिर गई। इस हादसे में 5 से ज्यादा लोगों की मौत का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू मुहिम शुरू हो गई है और अब तक सिर्फ 2 लोगों को मलबे से निकालने में कामयाबी मिली है। पुलिस इंतजामिया की टीम हादसे की जगह पर मौजूद है। मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले का है यह वाकया, जहां बिलासपुर रायपुर हाईवे से मुल्हक रामबोड़ गांव में वाक़ कुसुम प्लांट में अचानक भारी सेलो यानी सामान रखने का जखीरा अचानक गिर गया। नतीजकार यह हुआ कि चिमनी गिरा और फिर वहां पर काम कर रहे तकरीबन 30 मजदूर मलबे में दब गए। नाज़रीन, मालेगांव शहर से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मालेगांव में कारपोरेशन की हुदूद में जो गैर कानूनी कब्जा जात है, जिसे हम अपनी जबान में कहते हैं अतिक्रमण, नाजायज तरीके से रोड्स पर गलियों में भी कब्जा कर लेना,
تو मालेगांव कॉरपोरेशन हदूद में गैर कानूनी कब्जा जात अतिक्रमण से राहगीरों को, चलने वालों को बहुत ज्यादा जबरदस्त तकलीफें होती है। इसी को लेकर अक़लियती फलाह व बहबूद फाउंडेशन AVHF, जिसका मैं खुद जिम्मेदार हूँ और मरहूम बाबा सिद्दीकी साहब भी जिम्मेदार रहे हैं। अभी आरिफ नसीम खान साहब भी हमारे साथ हैं, वो भी हमारे सरपरस्त रहे हैं। आरिफ कमर जो नंदुरबार के हैं वो इसके महाराष्ट्र के बल्कि अध्यक्ष है और मैं खुद भी उसका जिम्मेदार हूँ इस फाउंडेशन का। तो मुझे खुशी है कि मालेगांव के हमारे जिला सदर जुनैद खान सहारा ने इस मामले को लेकर म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और गैर कानूनी कब्जाजात को, अतिक्रमण को रास्तों से हटाया जाए ताकि चलने वालों को तकालीफ का सामना न करना पड़े। उन्होंने ऐसा मुतालबा किया है। जुनैद सहारा ने कमिश्नर साहब को बताया कि इससे कई हादसात भी हो रहे हैं जिसमें इंसानों की जानें जा रही है। इसी तरह शहर गुंजान आबाद इलाके जैसे बिस्मिल्लाबाग में सैफ अख्तर नामी शख्स ने नाजायज तजावुजात करके अहलियाने मोहल्ला की नाक में दम किया हुआ है। सर्वे नंबर 117 2 प्लाट नंबर 8/7 बिस्मिल्लाबाग में 14 सालों से मुकीम मोहम्मद नईम अब्दुल गनी ने आरिफ नसीम खान की सरपरस्ती में अपनी समाजी खिदमत अंजाम देने वाली अक़लियती फलाह व बहबूद फाउंडेशन के नासिक जिला सदर जुनैद सहारा से अपना दुखड़ा सुनाया तो जुनैद खान ने फौरन अपना लेटर पैड म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र जादव को एक मकतूब अपने ही लेटर पैड पर भेजा, जिसमें यह डिमांड किया गया है कि अतिक्रमण को, गैर कानूनी कब्जाजात को हटाया जाए ताकि लोगों की तकलीफें खत्म हों। हमारे इस फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने पूरे मालेगांव शहर का दुखड़ा और हाल सुनाया और लेटर के जरिए से बहुत सारे मुतालबात किए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से गंदगी फैली हुई है, खस्ता हाल सड़कें हैं, गलियां, चौक चौराहे, उड़ता हुआ गुबार और धूल मिट्टी के बादल। सरकारी दवाखानों का इतना बुरा हाल है मालेगांव में कि मामूली बीमारी के लिए मरीजों को धुलिया सरकारी अस्पताल रवाना कर दिया जा रहा है। तो मालेगांव की बहुत सारी समस्याओं को लेकर बाकायदा हमारी अक़लियती फलाह व बहबूद की टीम ने मालेगांव कमिश्नर से मुलाकात की। इसी तरह मालेगांव का 7 रोजा जो उर्दू किताब मेला बड़ा अजीमुशान पैमाने पर मालेगांव में उर्दू किताब मेला सजाया जाता है और मुनक्किद किया जाता है। तो 7 रोजा उर्दू किताब मेले का तारीख साज इख्तिताम भी हुआ। एक बार फिर शहर और बैरून शहर के उर्दू क़ारीईन ने अपनी उर्दू दोस्ती का हक अदा कर दिया। मैं आपको बताऊं कि उर्दू किताब मेला इदारा शौतुल इस्लाम और अंजुमन मुहिब्बान फरोश मालेगांव के ज़ेर एहतमाम 1 जनवरी से 7 जनवरी तक मुनक्किद किया गया था, जहां कुल 20 स्टॉल लगाए गए थे जिसमें किताबों का भरपूर स्टॉक मौजूद था। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस उर्दू किताब मेले की कामयाबी का यकीनन पूरा सहरा खवातीन के सर जाता है जिनकी उर्दू दोस्ती और मुताले के शौक ने इस किताब मेले को तारीख साज कामयाबी से हमकनार कराया। आइए नाज़रीन, मध्य प्रदेश से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी है, इसलिए वहां से भी अफसोसनाक खबरें आती रहती है। अभी खबर आ रही है मुस्लिम दुश्मनी को लेकर। जैसे पहले हबीबगंज स्टेशन था, मैं खुद वहां जाया करता था, अब वो रानी कमलापति हो गया। क्या करे, हमारी जमीनें पसंद है, हमारा दिया हुआ टुकड़ा पसंद है, मगर हमारे नाम पसंद नहीं है। अब ये खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम नाम वाले जो मकामात है वो सब बदले जा रहे हैं। कांग्रेस ने वजीर आला को खत लिखकर कहा कि फिर नस्ली अल्फाज वाले गांव के नाम पर एतराज क्यों नहीं। कांग्रेस ने इस पर जबरदस्त अंदाज में एहतजाज जताया, आपत्ति जताई कि बीजेपी आखिर जो नस्ली अल्फाज वाले गांव हैं जिनके नाम ऐसे हैं उन पर बीजेपी को एतराज क्यों नहीं है। मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता इतवार को भी उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन है, यहां 3 गांव के नाम बदलने का ऐलान खुद वजीर आला मोहन यादव वहां का वजीर आला, ये भी इंतहाई मुस्लिम दुश्मन शख्स है। तो वजीर आला मोहन यादव के जरिए 3 गांव का नाम बदलने का ऐलान किया गया। ये तीनों ही गांव मुस्लिम नाम वाले थे। हम कहते हैं तुम में इतनी ताकत है तो कोई नया अच्छा गांव बसाओ। मुसलमानों के बसे बसाए गांव के नाम बदलकर कोई तीर मारना ये कोई बहादुरी नहीं है। नाज़रीन, वक्फ इमलाक
जिस पर चोरों की नजर है। जी हाँ, और बीजेपी की घटिया बिल्कुल निचले किस्म की जो पॉलिसी है वो यही है कि अब मुसलमानों की जायदाद पर कब्जा किया जाए। अब योगी आदित्यनाथ, इससे भी कोई अच्छी उम्मीद तो की जा नहीं सकती है। तो योगी आदित्यनाथ का एक बहुत ही घटिया किस्म का बयान आया वक्फ इमलाक को लेकर, जिसको लेकर हजरत मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का वक्फ इमलाक के मुताल्लिक जो बयान आया है वो हकीकत से बईद और बिल्कुल गुमराहकुन है, यानी झूठा बयान है और हकीकत से बहुत दूर है। वज़ीर आला ने बयान देते हुए अपनी आईनी ओहदे की पामाली की है, अपने संवैधानिक पद की बेइज्जती की है। एक्चुअल में इन लोगों को यह भी पता नहीं कि वो किस पद पर बैठे हुए, यानी बड़ी पद पर बैठकर भी इनकी घटिया हरकतें नहीं जाती है, बल्कि बड़ी पद का इस्तेमाल घटिया हरकतों के लिए करते हैं। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के बयान से ऐसा महसूस होता है कि वो एक मखसूस अकलियत के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। मौलाना महमूद मदनी से हम कहेंगे और सभी से कहेंगे कि उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल ही मत करो, मखसूस अकलियत और फिरका परस्त अनासिर। अरे डायरेक्ट कहा जाए कि मुसलमानों के खिलाफ ये बरसरे पैकार है और मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, और फिरका परस्त अनासिर के बजाय आप डायरेक्ट कहिए आतंकी या आतंकवादी, क्योंकि अब ये इतनी गाढ़ी उर्दू इन बदमाशों के समझ में नहीं आती है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, हमारे लाडले वजीर आजम उड़ीसा पहुंचे, भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी भी है। अक्सर उड़ीसा के प्रोग्राम में जब मैं जाता हूं तो यही भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उतरता हूं, फिर वहां से लोग लेकर जाते हैं। तो वहां पर मोदी जी भी पहुंचे, और आप जानते हैं कि मोदी जी भेष बदलने में भी माहिर है, स्टाइल और अंदाज और अल्फाज बदलने में भी अल्लाह ने खुसूसी मक्कारी उन्हें अता की है। अब मोदी जी वहां पर गए तो वहां पर उन्होंने कहा, भाई बहनों, हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर युद्ध में नहीं बुद्ध में है, यानी जंग में नहीं, लड़ाई में हमारा फ्यूचर नहीं है, बुद्ध में है। यानी उन्होंने इशारा किया और बुद्ध मजहब की जो है यूं समझिए कि उनकी तालीमात की तारीफ की और उनकी तालीमात को अपनाने की बात कही। मगर क्या करे, इनकी ही हुकूमत में बुद्धिस्टों को, दलितों को, मुसलमानों को बेइंतहा मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही। जब इनका मुंह नहीं खुलता है, ये जब अरब जाते हैं, कोयत जाते हैं, तो अरब का जुब्बा भी पहन लेते हैं, सर पर रुमाल भी डाल लेते हैं, कहीं गए तो टोपी भी डाल लेते हैं। अरब में जाकर मुसलमानों से ऐसा मिलते हैं कि उनको लगता है कि ये मुसलमानों के बहुत ही शुभ चिंतक है। मगर इनके दौर में मुसलमानों की कितनी मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को कितना टारगेट किया जा रहा है, वो दुनिया को बताया जाना चाहिए। इनकी मक्कारी और इनकी गद्दारी लोगों के सामने आनी चाहिए। खैर, ये भुवनेश्वर पहुंचे तो इन्होंने वहां पर ये कहा, वहां के, क्योंकि वहां बौद्ध मजहब का गलबा है, तो वहां पर उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, हमारा मुस्तकबिल युद्ध में नहीं बुद्ध में है। और उड़ीसा में वजीर आजम ने यह भी कहा कि उड़ीसा के तारीखी और सकाफती वर्षे को हिंदुस्तान की शानदार रिवायत की अलामत करार दिया। नरेंद्र मोदी ने वहां तारीफ किया उड़ीसा के तारीखी और सकाफती वर्षे की। तो हम कहते हैं कि मोदी जी, ये मध्य प्रदेश में आपके लोग और हिंदुस्तान में आपके लोग, जो मुसलमानों ने इस मुल्क को दिया है, जिससे तुम्हारी हुकूमत अरबों रुपये खा रही है, वो भी तारीखी हिंदुस्तान की शानदार रिवायत है। उनके नाम बदलकर मक्कारी मत करो। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल शिवसेना उद्धव जी ठाकरे के सपूत और लाडले आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से अपनी टीम के साथ मुलाकात की और उन्होंने ये जुमला कहा वहां पर कि हम देवेंद्र फडणवीस की भी तारीफ करेंगे। कब? जब वो ईमानदारी से अवामी काम करेंगे, और जब भी वो अवाम की ईमानदारी से खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं, तो हम तारीफ भी करते हैं और आगे भी करेंगे। यानी उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया कि अगर अवाम की खिदमत, महाराष्ट्र की सेवा नहीं की गई तो फिर हम उस एतबार से विरोध भी करेंगे, मुखालिफत भी करेंगे। आदित्य ठाकरे बहुत सारे मुतालबात, खास तौर से
पुलिस वालों को लेकर जो डिमांड्स, जो मुतालबात, जो उनकी बीजेपी की हुकूमत ने वादा किया था पुलिस वालों को घर देने का और उनकी बहुत सारी सेवाओं को लेकर, वो मुतालबात लेकर फिर आदित्य ठाकरे गए, क्योंकि अभी तक के पिछले वादे बीजेपी ने पूरे नहीं किए हैं। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।